प्रिय छात्रों नमस्कार। द साइंस सीरा में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर तथा ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं P इज इक्वल टू BRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, जहाँ कॉस फाई इज इक्वल टू पावर फैक्टर। In LCR circuit, cos phi is equal to R by Z, Z is equal to under root omega L minus 1 upon omega C होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अतः Z इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई FL माइनस 1 अपॉन 2 पाई FC होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देयरफॉर V इज इक्वल देयरफॉर कॉस फाई इज इक्वल टू R बाई Z, कॉस फाई इज इक्वल टू R बाई अंडर रूट ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इन a AC circuit, cos phi is equal to R by Z, cos phi is equal to R by under root omega L minus ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आइए अब हम लोग वाटहीन धारा, वाटलेस करंट के बारे में जानते हैं। वाटलेस करंट CAC परिपथ तथा LAC परिपथ में विभव तथा धारा परस्पर 90 अंश कालांतर में होते हैं। इस स्थिति में कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस 90 is equal to 0. Therefore, P is equal to VRMS into IRMS into cos 90 Therefore, P
P is equal to 0, then those circuit in which phi is equal to 90, then power factor will become 0, then current, then power of circuit will be 0. Therefore, the circuit are known as a then circuit are known as then circuit of known as wattless current. वे परिपथ जिसके लिए शक्ति गुणांक cos phi is equal to cos 90 अतः परिपथ की शक्ति क्षय शून्य प्राप्त होती है। अतः इस प्रकार के परिपथ की धारा वाटहीन धारा
कहलाती हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वे परिपथ जिसके लिए शक्ति गुणांक cos फाई 90 होता है, अतः परिपथ की शक्ति 0 प्राप्त होती है। इस प्रकार के परिपथ की धारा वाट-इन धारा कहलाती है। आइए अब हम लोग अनुनादी परिपथ के लिए क्वालिटी फैक्टर के बारे में जानेंगे। अनुनादी परिपथ के लिए ये ω1, ω2 एंड ω0। अनुनादी परिपथ के लिए ω0 इज इक्वल टू 1/LC 1/√LC। तब ω1 से ω2 के बीच गुण Q इज इक्वल टू ω0 अपॉन ω2 माइनस ω1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। LCR
परिपथ के लिए ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी is equivalent to R. Therefore, Z is equal to under root R square plus omega L minus 1/omega C whole square is equal to under root in LCR AC circuit omega L minus 1/omega C is equivalent to R. Therefore, Z is equal to under root R square plus omega L minus 1/omega C whole square. It is also write as under root R square plus R square. ORR under root R square plus omega L minus 1/omega C whole square is equal to R root 2. On squaring both sides, R square plus omega L minus 1/omega C whole square is equal to 2R square. ORR omega L minus 1/omega C whole square is equal to R square. Therefore, omega L minus 1/omega C is equal to plus minus R. लिख लीजिए आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं ओमेगा एल माइनस 1/omega C इज इक्वल टू प्लस माइनस R. In a first condition, omega 1 L minus 1/omega C is equal to minus R, and in a second condition, omega 2 L minus 1/omega 2 C is equal to plus R. That is equation number first and that is equation number second. On adding omega 1 L plus omega 2 L minus 1/omega 1 C minus 1/omega 2 C is equal to 0. ORR L in bracket omega L omega 1 plus omega 2 minus 1/C common in bracket 1/omega 1 minus plus
1 upon omega 2 is equal to 0. Therefore, omega 1 plus omega 2 minus common and L minus 1 upon C in bracket omega 1 L omega 1 plus omega 2 minus 1 upon C in bracket omega 1 plus omega 2 upon omega 1 into omega 2 is equal to 0. चलिए L इन ब्रैकेट ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन C इन ब्रैकेट ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर omega 1 plus omega 2 in brackets L minus 1 upon C into 1 upon omega 1 into omega 2 is equal to 0. L minus 1 upon C into 1 upon omega 1 into omega 2 is equal to 0. Therefore, 1 upon C into 1 upon omega 1 into omega 2 is equal to L 1 upon omega 1 into omega 2 is equal to L C. Then स्क्रीनशॉट ले लीजिए. On subtracting equation second from first, omega 2 L minus 1 upon omega 2 C minus omega 1 L plus 1 upon omega 1 C is equal to 2R. Omega 2 minus omega 1 into L plus 1 upon omega C, omega 1 C और minus 1 upon omega 2 C is equal to 2R. Omega 2 minus omega 1 L plus 1 upon C in bracket 1 upon omega 1 minus 1 upon omega 2 is equal to 2R. Omega 1 omega 2 minus omega 1
L प्लस 1 अपॉन सी इन ब्रैकेट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2R। देयरफॉर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन ले लेते हैं इन ब्रैकेट L प्लस 1 अपॉन सी इंटू 1 अपॉन ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2R। देन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इन ब्रैकेट L प्लस 1 अपॉन सी इंटू 1 अपॉन ओमेगा 1 and ओमेगा 2 is equal to LC from equation number 1 is equal to 2R. Therefore, omega 2 minus omega 1 into 2L is equal to 2R. ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू R by L। Therefore, the quality factor in a resonating circuit Q is equal to omega naught upon omega 2 minus omega 1। Therefore, Q is equal to 1 by root LC upon R by L। Therefore, Q is equal to 1 upon R under root L by C। It is a quality factor of resonating circuit। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर। आप समझते हैं प्राचीन समय में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए संसाधन की ज़रूरत होती थी, लेकिन तब संसाधन नहीं होता था और संसाधन ना होने के कारण क्या होता था, लोग पैदल चलते थे। महीनों, 2 महीने, 4 महीने लगातार पैदल चलते रहते थे और फिर जाके किसी अपने गंतव्य तक पहुंच पाते थे। आज का जो समय है वो मॉडर्न ईरा चल रहा है। मॉडर्न ईरा के अनुसार आज तरह तरह की सुख सुविधाएँ हैं। किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए तरह तरह के संसाधन हैं। उन संसाधनों को आपको उपयोग करना है और उनके बारे में जानना है। आज हम लोग ऐसे संसाधन के बारे में जानेंगे जिनकी सहायता से घरों घरों में विद्युत धारा भेजी जाती है और विद्युत धारा का ट्रांसमिशन किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक घर में जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जो विद्युत धारा भेजी जाती है, वो वास्तव में हमारे जो उपकरण हैं वो 220 वोल्ट से 280 वोल्ट के बीच में कार्य करते हैं। और आप जानते हैं ऊंचे ऊंचे तारों द्वारा 11,000 1 लाख वोल्टेज तक का भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जो हमारे आसपास बने पावर हाउसों में आती हैं। वहाँ पर लगे हुए ट्रांसफार्मर उसको परिवर्तित करते हैं, विभव को निम्न तथा धारा को उच्च करते हैं और इस प्रकार हमारे आसपास के क्षेत्रों में विद्युत धारा पहुंचाई जाती है। जब हमारे घर के आसपास पहुंचता है तो वहां पर भी एक विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर लगा होता है जो धारा को कम विभव और उच्च करंट में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण हमारे घर के जो डिवाइस हैं वो सुचारू रूप से चल पाते हैं। आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे
ऐसे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर एक विशेष प्रकार की युक्ति है जिसकी सहायता से धारा व विभव के मान परिवर्तित किए जा सकते हैं। किसी में धारा बढ़ेगी, किसी में विभव बढ़ेगा। कोई धारा बढ़ेगी तो विभव घटेगा और विभव बढ़ेगी तो धारा घटेगा। तो हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में आज ट्रांसफार्मर में जानेंगे। ट्रांसफार्मर जैसा कि नाम से पता है, एक फार्म को दूसरे फार्म में बदलता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर। फार्म का मतलब यहाँ पर धारा और विभव से है। अन्यथा ट्रांसफार्मर अर्थात वह युक्ति जिसकी सहायता से किसी परिपथ के लिए धारा व विभव के मान परिवर्तित किए जाते हैं, ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। Those devices in which the potential and current of a circuit are interchanged to each other are known as a transformer. Transformer are basically two types. First, step up transformer. Second, step down ऊंचाई ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वास्तव में विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित युक्ति है जिनमें दो कुंडलियों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ पर कुंडलियों में फेरों की संख्या का ही सारा खेल होता है। कुंडलियों की फेरों की संख्या तथा तारों की मोटाई ट्रांसफार्मर के लिए सबसे उपयुक्त दशाएं होती हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक कुंडली यानी प्राइमरी कॉइल हैज लीस्ट टर्न एंड सेकेंडरी कॉइल हैज मोर टर्न। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त प्राथमिक कुंडली मोटे तार व कम फेरों वाली तथा द्वितीयक कुंडली पतले तार व अधिक फेरों वाली होती है, जिनके बीच नर्म लोहे की क्रोड भरी जाती है। सॉफ्ट आयरन कोर आर फील्ड बिटवीन द ट्रांसफार्मर। एंड द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर having the maximum turn and thin wire and secondary coil having the thick wire and minimum number of turn, also filled with soft iron core to avoid the ED current in a transformer. स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। चलिए लिखते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर।
those transformer in which primary coil has eastern and made of a thick wire and secondary coil has thin wire filled with soft iron core between them ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दो ट्रांसफार्मर in which the primary coil has least turn and made of the thick wire and secondary coil has more turn and a thin wire filled with a soft iron core between them are called the step up transformer, in which voltage of circuit is high but current will be minimum. ऊंचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को घटाता है, जैसा कि आप जान पाए हैं। वास्तव में मोटे तार और कम फेरों का बनाने के संबंध में यह बात होती है कि इनमें कम धारा आती है
जिसके कारण ये कम धारा के कारण इसका विभव जो है वो उच्च हो जाता है। अतः यह परिपथ में धारा को घटाती है तथा वोल्टेज को बढ़ाती है। इसका उपयोग विद्युत के सप्लाई में किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र की जाती है। इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग अगले वीडियो में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। साथ में ट्रांसफार्मर के लिए दक्षता तथा ट्रांसफार्मर के लिए परिणामन अनुपात के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। धन्यवाद।